एक्चुअली हम लोग चाहता था इंस्टेंटली हम लोग कल ही आप लोगों को थोड़ा प्रेस ये दे देगा बोल के ना स्टेटमेंट. देयर हैज़ बिन बिकॉज हमारा वो मेंबर लोग नहीं आ पाया है, कल सम आउट ऑफ स्टेशन था, दैट्स वाई वी दिस वन took today's time and all. Regarding coming to the point, I don't want to waste much of your time and all. ये जो we are talking about the Arunachal Pradesh Marriage and Inheritance of Property Bill 2021. When you look into the details of this one, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि एक दिन में वुमेन कमीशन ने या APWWS के साथ मिलके ये ड्राफ्ट बिल बनाया है. तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन अमंग द पीपल रिगार्डिंग दिस वन एंड ऑल. तो सिंस 2005 the women commission, when it was established since 2005, since then always the women commission which was led by Jarju Mehte madam, who was the first chairperson of the women commission, उसमें गुमरी मैडम लोग भी था. Since then they have been writing working for the women's rights and also against the evil practice of polygamy. और जो प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में भी तभी से चर्चा बहुत ज़ोर शोर से चल रहा था. लेकिन नाउ इट्स 2021, मोर देन 15 years हैव पास्ड जब ये वुमेन कमीशन एस्टैब्लिश हुआ था. एंड आप लोग मीडिया में भी देखते होंगे, बहुत बार लोग ट्रोलिंग करते हैं कि वो ये वुमेन कमीशन लोग क्या कर रहा है, ये वुमेन कमीशन लोग क्या कर रहा है, यहाँ मीटिंग बैठता है, वहाँ में मीटिंग बैठता है, लेकिन देर इज़ नो आउटकम. दैट इज़ व्हाट ऑल द women folk and all they think. Even the intellectuals they have this thing. हम लोगों का कंसर्न था कि दिस आवर फिफ्थ बॉडी ऑफ वुमेन कमीशन, वी वेर अपॉइंटेड इन 2018 December. The day we were appointed, from the next month onwards, that is 2019, हम लोगों ने जितना भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स किया उसमें हम लोगों ने मैरिज इश्यूज़, पॉलीगमी हो, उसके बाद वुमेन इश्यूज़, चाइल्ड राइट्स के बारे में, ड्रग अब्यूज़ एंड ऑल्सो रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी राइट्स, हम लोगों ने जितना लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम्स किया है उसमें वी ऑलवेज स्पोक ऑन ऑल दिस इश्यूज़ के बारे में और लैंड राइट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है. एंड ये ओवरनाइट नहीं हुआ है, एज आई एम सेइंग, सिंस लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम्स. सो अगर आप देखोगे, because of the good fund we got from the government, we were able to conduct a good number of legal awareness programs also. उसमें repeatedly हम लोगों ने इस जो issue है इसके बारे में, polygamy के बारे में और land rights के बारे में हम लोगों ने discuss किया है. and ये overnight नहीं हुआ है, as I am saying, since आपका 1979 when the Arunachal Pradesh Women Welfare Society was established, they are the leading NGO, women's NGO who are working for the women's rights. तब से हम लोग property rights के लिए fight कर रहे हैं. They are as old as me, and one of the pioneer members is sitting just beside me, Gumri madam. She is the president of Arunachal Pradesh Women Welfare Society. At the same time, she is also the chairperson of the Child Rights Commission. So after we took over numerous जो legal awareness programs have we conducted, around 100 legal awareness programs we have conducted in the last 3 years since 2019. In these all legal awareness programs, we consulted all the legal experts who worked as the resource persons, and also we talked with the CBOs who came and helped as resource persons. Even in the districts, the district legal services का जो magistrate है, they came as resource persons. So this is not a thing which we just drafted overnight. उसके बाद when we had International Women's Day since 2019, simultaneous since then, continuously for the last 3 International Women's Day, we have been conducting program on this issue. In 2020 we had 2 days seminar जहाँ पे हम लोगों ने कस्टमरी प्रैक्टिसेस एंड मैरिज राइट्स के बारे में एंड प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था. एंड इट वाज अ 2 days लॉन्ग सेमिनार. वहाँ पे हम लोगों ने जितना CBO से, NGO से, एंड वी कॉल रिसोर्स पर्सन्स फ्रॉम ऑल द
experts from academicians, experts we called and all. वहाँ पे you had representatives from the Monpa tribe, Adi, Apatani, Galo, Sherokpen, Mishmis, and almost all the tribes were there. Yobin was there, Khamti, Sajong, Miju, Digaru, Mishmi, Memba. So you had almost all the tribe representatives who gave the customary practices में क्या loopholes है, क्या practice करना चाहिए, and what are the drawbacks in the customary practices. उसमें भी हम लोगों ने discuss किया था कि marriage practices के बारे में, and also regarding the property rights to be given to the girl child or the women. Next, उसके बाद there also we had all the CBOs coming from different tribes. CBOs who participated, and we have Adi Bane Keba Women Wing, we had GWS का Women Wing, and Arunachal Pradesh Women Welfare Society का जितना भी आपका branch है, all over the Arunachal, we invited all the president and secretaries. So it was a very big program which was organized in Don Bosco, and even we invited the concerned minister and WCD secretary, and they were really surprised to see the number of participants. So nobody can think that this is just an overnight draft which we did on our own. We have been consulting continuously for over a period of 3 years. At least this has been a continuous process for the last 3 years. And after that, in 2021, 8th March, on International Women's Day, the theme was Men for Women. And there also we had customary practices and property rights of women and girl child in the context of Arunachal Pradesh. We conducted this seminar, and it was a 3 days long program where all the CBOs were invited. We invited executive members from AITF also. APSU also was invited. Even the APSU president came. We invited Anya also, for that matter. Anya came to our first seminar which was conducted in 2020, 2 days long program. In 2021, there was a lots of discussion regarding whether a property right should be given. वहाँ पे क्या हुआ है? We invited the गाँव बुढ़ास also. Then we had conducted this program in collaboration with Arunachal Pradesh Women Welfare Society, WCD department, and also SALSA. तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था, जितना भी गांव बुढ़ास है, वी हैड इनवाइटेड देम आल्सो, एंड सीबीओ मेंबर्स सब ट्राइब से आया था. हर ट्राइब का आपको अगर रिकॉर्ड चाहिए तो हम लोग उसको भी आप लोग दिखा सकते हैं. तो वी हैड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम एपी सालसा, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गालो वेलफेयर सोसाइटी एंड इट्स वुमेन विंग, आदि बाने केबा एंड इट्स वुमेन विंग, निशी एलाइट सोसाइटी वुमेन विंग, मोनपा मिमांग शोकपा, साजोंग एलाइट सोसाइटी, आका एलाइट सोसाइटी, ताई खामती सिंगफो काउंसिल, ये है ऑल whoever attended that program. Nokte Welfare Forum, CBOs, NGOs, Apatani Women Association Zero, and Nishi Nyam Acham members were also there. Then we had academicians, intellectuals, advocates, student union leaders. Even we invited the APSU also. Even APSU president also came for that meeting, for that matter. And there we discussed regarding whether girls should get property rights or not. And secondly, what to do regarding to finish off with this practice of polygamy. At the end of the 3 days program, जितने भी participants थे, and also from various branches of APWWS, we had president madam भी थे, secretary भी थे उसमें. तो उसमें हम लोगों ने decide किया था at the end of the program, we divided the groups into the whole participants into large number of groups. अलग अलग groups में हम लोगों ने divide किया था, जहाँ पे law students लोग भी थे, उसमें आपका गाँव बूढ़ा लोग भी थे. Then we had a group discussion, and in the group discussion, it was each group gave their own representation, and each group came up to this conclusion that property right should be given to the women of Arunachal Pradesh, women and girl child, and polygamy should come to an end through whatever legal process and all. So वो हम लोगों ने decide किया था उसमें. तो उसके बाद after this thing आपका ये आ गया, and we had to this one because of the pandemic and all, 1-2 महीना हमारा थोड़ा lapse हो गया. Thereafter, subsequently on 25th July, drafting committee, we called all the CBOs in the office of the Women Commission on July, 11th July. Before 11th July, there was a meeting held in
our office in Women Commission's office, where we invited the CBOs and even APWWS members, and we discussed regarding there can be a common law for Arunachal Pradesh on the similar lines that the state of Mizoram has. Mizoram is a Christian state, no doubt. तो वहाँ पे भी बहुत सारा ट्राइब्स है, बट दे हैव अ कॉमन लॉ फॉर द होल स्टेट मिजोरम में. तो हम लोगों ने भी डिसाइड किया था, हम लोगों ने वहाँ पे चर्चा किया था कि क्या अरुणाचल प्रदेश में भी ऐसा हम लोग कुछ कॉमन रूल बना सकते हैं फॉर द होल स्टेट, and also taking into consideration the numerous legal awareness programs and also the seminars we had conducted. तो उसमें हम लोगों ने डिसाइड किया था, even the advocates were there, we had decided कि for the whole of Arunachal Pradesh a common law should be there for marriage and inheritance of property bill. We are not talking about other customary practices and all, we are just talking about the marriage and inheritance part. So it was agreed by most of the CBOs who were there that a wider consultation will be needed, and will invite all the CBOs, main CBOs if not possible also, and invite them to be a part of the drafting committee. Thereafter, on 11th July 2021 at Hotel Pibes, at the initiative of Women Commission, a bill was drafted by the drafting committee, and all the various CBOs including AITF was invited, APWWS and its executive members, Galo Welfare Society Women Wing, Adi Bane Keba Women Wing, Nishi Allied Society Women Wing, Mishmi Welfare Society, Nishi Nyam Acham, उसके बाद Students Union, and since Apex body is headed by APSU, we called APSU also for that program, and advocates from Bar Association, and also from university we invited all the academicians and all to participate in that process. तो clause by clause वहाँ पे हम लोगों ने discuss किया था. We had asked the drafting committee led by a senior advocate to draft a bill for the people of Arunachal Pradesh, and we had discussed clause by clause, हर act को हम लोगों ने discuss किया था in detail. कौन सा एक्ट को रखना चाहिए, कौन सा एक्ट को छोड़ना चाहिए, उसमें हम लोग क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन हुआ. एंड इट वाज नॉट लाइक कि ओवरनाइट आपका कोई एक्ट बन गया है. इन दिस टाइम्स व्हेन नोबडी इज इवन रेडी टू गो एंड सिट इन द मीटिंग, एवरी मेंबर टुक द रिस्क एंड दे केम टू होटल पाइबीज, और दिन भर बैठा उसमें. दे हैड ब्रेकफास्ट, लंच, टिल आफ्टरनून दे वर देयर. 4 बजे तक वहाँ पे था हम लोगों ने. एंड देन we had again come to this one कि after debating and all we came to कौन सा act, कौन सा section को रखना है, नहीं रखना है. And then on 25th July 2021 the final drafting committee meeting was held at DK Convention Hall, IG Park, and there the representatives were AP Salsa, BJP Mahila Morcha का president and the executive members were there, all Arunachal Pradesh Students Union, Nesh Women Wing, Arunachal Pradesh Women Welfare Society CEC, and the APACW members were there in the final drafting committee meeting. And as you might have already seen, आप लोगों ने सुना होगा कि APSU का जो प्रेसिडेंट है वो खुद भी बोला है कि वो ड्राफ्टिंग कमिटी मीटिंग में था. And we had also called AITF executive members, but I don't know for what reason they could not be there. अभी हम लोग क्या करते हैं, after that in that there was discussion regarding each and every section of the act. उसके बाद हम लोगों ने फाइनल बनाया है. So we had 3 rounds of meeting, and before that 3 continuous years of seminars and legal awareness programs, and in each district we are going, leaving our family. Since the winter time, 4-5 months we are out of our station. We had not done something like this just overnight. And before that, you see, since 1979 the women's movement have been working for women's empowerment. And some people in Arunachal, they are sometimes trolling कि ये क्या कर रहा है, सिर्फ भाषण दे रहा है, कुछ नहीं कर रहा है. और अगर हम लोग इतना मेहनत करके एक बिल, हम लोग अगर बिल ड्राफ्ट बनाता है, अगर उसमें कुछ भी कमियां हैं, अगर आप लोगों को लगता है उसमें कुछ भी खामियां हैं, तो everybody has a right to place your grievances through a proper NGO, through your concerned CBO. So after all this, we have been trying to get the appointment with Honorable CM, but he was out of station. So ultimately when we got
our appointment with the Honorable CM, he said that he will look into the matter because he believes in gender equality, he believes in property rights for women, for girl and women, and he also believes that the practice of polygamy has to be abolished. Even in International Women's Day 2021, we had invited the Honorable CM as the chief guest. And that program was a grand success, and it was a very good one also. And the Honorable CM had promised that he will look into the grievances of the women. Even there he had given his assurance that जो भी आएगा वुमेन ये कमीशन से या APWWS से उस मुद्दे को वो सीरियसली लेगा. And we are very thankful to him for taking women's issues seriously. उसके बाद क्या हो गया है? Then we presented the drafting committee का जो बिल है, हम लोगों ने अपना ड्राफ्ट कॉपी को गवर्नमेंट को प्लेस किया. Government said कि after proper consultation with all the CBOs and after the due process जो एक होता है डिपार्टमेंट से होके जाके लॉ डिपार्टमेंट से जो जाता है उसको तो बहुत टाइम लगेगा, एक दिन में तो होगा नहीं. तो ही सेड ये असेंबली में नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट असेंबली में हम लोग देखेगा, बट वाइडर कंसल्टेशन इज नेसेसरी. दैट वाज हिज वर्ड. And he said that he will consult the CBOs before taking final decision. And day before yesterday, when there was a program in DK Convention Hall, there also the Honorable CM said that he will look into the matter. He will call all the CBOs for wider discussion on this topic. And then he asked and encouraged all the CBOs to come forward for the discussion. So we are happy. अभी ये issue अगर जो भी तरीके से मीडिया में आया होगा तो हम लोग सोचते हैं कि इसमें जो भी पॉजिटिविटी भी आया है, जो एडवांटेज है उसको भी आप लोग ब्लाइंडली जो मीडिया पर्सन से या द मास ऑल्सो इवन द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश शुड नॉट ब्लाइंडली ओवरलुक द होल एक्ट एंड जस्ट गो इनटू द नेगेटिविटी ना. अगर आप लोगों को लगता है कोई भी सेक्शन it's not acceptable, you have a proper forum, you have your NGO, you have your CBOs. Please place your grievances through the proper forum, through your proper CBOs. आप लोग ऐसा करते हैं. उसमें even the honorable minister रिजिजू सर ने क्या बोला है, he rightly said day before yesterday कि हमारा यूथ लोग क्या होता है कि आपको एक फेसबुक मिल गया, व्हाट्सएप मिल गया, जो चाहे आप लिख रहा है, but have you studied the bill? I have told many people अगर आपको बिल के बारे में कुछ मालूम होना है प्लीज़ आस्क अस. उसके बाद आप लोग आपने फेसबुक में कुछ देख लिया, यू आर गिविंग रिएक्शंस. सो आई डोंट थिंक दैट इज़ हाउ अ सिविल सोसाइटी शुड बी वर्किंग. अ सिविलाइज सोसाइटी इज़ नॉट सपोज टू वर्क दैट वे. जो भी आप लोगों को कहना है यू कैन प्लेस योर ग्रीवेंसेस थ्रू अ प्रॉपर फोरम, थ्रू अ प्रॉपर CBO एंड योर NGO. एंड उसके बाद आप देखिए कि वी आर वेरी ग्रेटफुल to the present government under the leadership of Shri Pema Khandu that he has taken women's issues seriously, and I would also request him to take into consideration all the CBOs properly, because जब हम लोग बुलाते हैं as a commission, as APWWS, in each seminar and all we send around 2,000 to 3,000 invitations. Hardly how many NGOs come forward? Hardly 300-400. हम लोग भेजते हैं 4,000-5,000 invitations in each of the 2 to 3 days seminar. In each district awareness programs, the APWWS branch and all, they invite all the people. How many people turn up? और जब हम लोग प्लेस करते हैं तब बोलते हैं we have not been asked, we have not been consulted. When we call for the meeting, nobody turns up. And people who were there in the meeting also, they are not able to take stand. So I request all the people कि अगर आपको कोई particular section, कोई पर्टिकुलर एक्ट, उसके एक्ट के अंदर में अगर कोई पर्टिकुलर सेक्शन से अगर आपका कोई भी नाराज़गी है तो आप उसको थ्रू प्रॉपर चैनल, थ्रू प्रॉपर फोरम आप लोग अपना ग्रीवेंसेस प्लेस कीजिए, थ्रू योर कंसर्न्ड NGO. नॉट जस्ट राइटिंग एनीथिंग इन द फेसबुक एंड व्हाट्सएप एंड गोइंग पर्सनल. हम लोग को गाली देते देते आप गवर्नमेंट को गाली दे रहा है. ही शुड स्टेप डाउन. फॉर व्हाट? ही इज अ यंग एंड एनर्जेटिक चीफ मिनिस्टर who is ready to at least listen. कल को ये होगा नहीं होगा वो अलग बात है, एटलीस्ट वो सुनने के लिए रेडी है.
तो आप लोग अगर अपनी महिलाओं का दुख और कष्ट को सुनना नहीं चाहते हैं, प्रैक्टिकली जब हम लोग कमीशन में हैं, क्या इश्यूज हम लोग फेस करता है, क्या प्रॉब्लम फेस करता है, वी नो. I will tell you the practical problems that come to women commission while solving a case. We are a quasi judicial body. जब भी कोई केस आता है हमारे यहाँ पे, if suppose a woman comes and says कि मेरा हस्बैंड ने डोमेस्टिक वायलेंस किया है, उसके बाद क्या होता है, डीवी एक्ट के अंदर में वो केस रजिस्टर होगा, डीवी एक्ट के अंदर में वहाँ पे कंसर्न कोर्ट में जाएगा. बट इफ शी इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द सेकेंड वाइफ, if she is not ready to accept the second wife, the husband gives her two options. या तो आप पूरा प्रॉपर्टी का मालकिन बन जाओ, या तो आप ये दरवाजे से बाहर चला जाओ ना, ये एक ऑप्शन देता है. बिकॉज शी हैज़ नो अनदर ऑप्शन, बिकॉज शी कैन नॉट गो बैक टू हर हाउस. शी इज़ द मदर ऑफ 4 to 5 चिल्ड्रन. शी हैज़ टू थिंक अबाउट द वेलफेयर ऑफ हर चिल्ड्रन. क्या करता है वो, पॉलीगमी को एक्सेप्ट करता है. सो यू कैन नॉट से, मेनी ऑफ अस से, आप लोग से पॉलीगमी का बात कीजिए, प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बात मत कीजिए. दीज टू आर इंटरलिंक्ड प्रॉब्लम्स. हम लोग बोलते हैं कि पॉलीगमी को हटाओ. पॉलीगमी को कैसे हटाएगा? वो फर्स्ट वाइफ अंडर इकोनॉमिक प्रेशर, बिकॉज शी हैज़ नो राइट, शी कैन नॉट गो बैक टू हर पेरेंट्स, शी हैज़ नो राइट फ्रॉम हर पेरेंट्स. उसको वहाँ से एक टुकड़ा, एक 5% भी नहीं देता है. अच्छा, जो समझदार पेरेंट्स है वो लोग देता है, बट एज ऑफ लॉ इट इज़ नॉट देयर इन अरुणाचल प्रदेश. सो शी हैज़ टू एक्सेप्ट द हर फेट. जब तक पति ठीक है, शी गेट्स टू कलेक्ट द रेंट एंड शी इज़ एबल टू कलेक्ट ऑल द मनी एंड ऑल, द डे उसका हस्बैंड को दूसरा औरत पसंद आ जाता है, एंड इफ शी इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द सेकेंड वाइफ, शी इज़ शोन द डोर. उसका घर का दरवाज़ा दिखाया जाता है कि ये रास्ता से आप बाहर निकल जाओ. अगर आप सेकेंड वाइफ को एक्सेप्ट करेगा तो आपको पूरा प्रॉपर्टी का मालकिन बनाएगा. अगर आप सेकेंड वाइफ को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो यू कैन वेरी वेल गो आउट. दिस इज़ वेरी मच इंटरलिंक्ड. कमीशन में हम लोग को कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है कि जो केस आता है, शी इज़ अ विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एंड शी हैज़ लॉट्स ऑफ प्रूफ ऑल्सो. शी वॉन्ट्स टू गो आउट ऑफ दैट हार्मफुल रिलेशन, बट वी नो दैट शी कैन नॉट सपोर्ट हर सेल्फ एंड हर फैमिली. सो दैट्स वाई वी आस्क हर कि आप देख लीजिए, प्लीज़ टेक इन टू कंसिडरेशन कि आप यहाँ से निकलने के बाद भी वेदर यू आर इन अ पोजिशन टू सपोर्ट योर सेल्फ एंड योर चिल्ड्रन. तो क्या होता है, मेनी विमेन जस्ट बिकॉज दे कैन नॉट सपोर्ट देम सेल्फ, वो लोग जाके शॉर्ट स्टे होम में रह जाता है, अपना बच्चा को पति के साथ भेज देता है. देर आर मेनी थिंग्स लाइक दैट, एंड आई इन माई आवर दिस वन एक्सपीरियंस एज द कमीशन मेंबर्स, वी हैव सीन दैट पॉलीगमी और प्रॉपर्टी राइट्स का बहुत डीप इंटरलिंकेज है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट प्रॉपर्टी राइट्स, जब हम लोगों ने डिसाइड किया कि प्रॉपर्टी राइट्स का इश्यू को हम लोग एड्रेस करना चाहिए, वन ऑफ द मेन थिंग्स इज दैट व्हेन वी टॉक अबाउट प्रॉपर्टी राइट्स, वी हैव टू लुक इनटू द कॉन्स्टिट्यूशनल, जो भी सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है उनको हम लोग देखना पड़ेगा. वी कैन नॉट से समथिंग हियर विच इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, विच इज़ नॉट सपोर्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट. आपको मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस के हिसाब से एसटी स्टेटस इज बाय बर्थ. सो अरुणाचली वुमेन, एपीएसटी वुमेन, शी इज़ एपीएसटी बाय बर्थ. अभी बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशंस लोग बोल रहे हैं कि जो औरत नॉन एपीएसटी को शादी करता है का उसका एसटी स्टेटस को कैंसिल कीजिए. इज़ इट पॉसिबल? आप लोग बोलिए. जो रूल ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बना लिया है, जो गाइडलाइंस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेम कर चुका है, क्या हम लोग यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ में जो नॉन एपीएसटी को शादी किया है उसको एसटी स्टेटस नहीं दे सकता, उसको एसटी का राइट्स नहीं दे सकता? सो वी हैव व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टी राइट्स, वी कैन नॉट ओवरलुक द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो एक एपीएसटी वुमेन को दिया है. दैट्स वाई हम लोगों ने क्लॉज में बहुत क्लियरली हम लोगों ने उसमें मैंशन किया था कि यू सी मेनी विमेन आर अनमैरिड थ्रू आउट देयर लाइफ ऑल्सो. वो खुद प्रॉपर्टी बना लेता है, खुद यहाँ पे घर बनाता है, दुकान खरीद लेता है, ज़मीन खरीद लेता है, लेकिन शायद लेट 40s में वो शादी करता होगा, लेट 50s में शादी करता होगा, एंड दैट पर्सन कुड बी अ नॉन एपीएसटी ऑल्सो. दैट्स वाई हम लोगों ने बहुत क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया है कि अगर वो नॉन एपीएसटी को भी शादी करता है, एज लॉन्ग एज शी इज़ अलाइव शी कैन एन्जॉय हर प्रॉपर्टी. आफ्टर हर डेथ
जिससे भी अगर उन लोगों ने इनहेरिट किया होगा, अगर उसने इनहेरिट किया है तो उसका भाई भैया जो हेयर अगर माँ पिताजी से इनहेरिट किया है तो उसके हेयर में चला जाएगा, यानी कि अगर माँ पिताजी से इनहेरिट किया है तो उसका भाई भैया में चला जाएगा आफ्टर द डेथ ऑफ आवर पेरेंट्स। और अगर उसने वो प्रॉपर्टी को खुद से बनाया होगा, अपना जवानी में बनाया होगा, तो भी उसके मरने के बाद उसका पति और बच्चा ये प्रॉपर्टी को इनहेरिट नहीं कर सकता है। वो यहाँ के अरुणाचल प्रदेश का इंडिजिनस ट्राइबल को सेल ऑफ करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने वी हैव रिटन दिस जस्ट टेकिंग द इंटरेस्ट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। हम लोगों ने नहीं लिखा है कि ये लड़की का मरने के बाद नॉन एपीएसटी को दो, उसका बच्चा को मत दो। एंड द ड्राफ्ट विच इज रोटेटिंग इन द सोशल मीडिया, इन द फेसबुक, इट्स एन ओल्ड ड्राफ्ट। वो जो फर्स्ट ड्राफ्ट हमने बनाया था, दैट इज सर्कुलेटिंग इन सोशल मीडिया। दैट्स वाई आई हैव आस्क्ड सम ऑफ माय फ्रेंड्स ऑल्सो, आप लोग जिस क्या मीडिया उसके ऊपर में कमेंट कर रहे हैं, क्या आपने कभी ट्राई किया है कि वो लेटेस्ट ड्राफ्ट है कि नहीं है? पीपल दे आर सेइंग सेक्शन 39, बट इट्स नॉट देयर इन सेक्शन 39, इट्स इन सेक्शन 42, 43। आप यहाँ पे देखिए, इन सेक्शन 42 and 43 we have discussed about these rights. So I request each and every member of CBOs and NGOs, Women Commission is here, Arunachal Pradesh Women Welfare Society is here. आप लोगों को अगर कुछ भी पूछना है, our office is always open. आप लोग लेटर दे सकता है, पूछिए हम लोगों को, हम लोग ड्राफ्ट के बारे में आप लोगों को आंसर देंगे। आप लोग मीडिया में कुछ देख लिया, अभी हम लोग का नॉन ट्राइबल नॉन एपीएसटी को मिट्टी देने वाला है, हम लोगों का यहाँ का लड़की लोग बाहर का आदमी को देने वाला है। APWWS is also a very conservative society, though it works for the welfare of the women of whole of Arunachal Pradesh. The members are not non-APST women, though they look into the grievances of non-APST women, and for that matter जो भी हमारा ट्राइबल लड़की नॉन APST को शादी किया है, they are also not the portfolio holders यहाँ पे, so they will never think about giving the property of Arunachal Pradesh to a non-APST. We have discussed this with APSU also. That's why APSU said कि आप लोग जो भी हो, we told them also कि हम लोग देखेंगे कि after the death of the non-APST women there should be a time frame, वो गवर्नमेंट कर सकता है। एंड आफ्टर वाइडर डिस्कशन, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि कोई पर्टिकुलर सेक्शन इज नॉट गुड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, वो तो गवर्नमेंट के ऊपर में है। नाउ दिस ड्राफ्ट बिल जो हमने बनाया है, इट्स जस्ट एंड इन अ वेरी इन्फेंट स्टेज। अभी हम लोग दिया है, सबमिट किया है, उसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट उसको अभी का अभी इम्प्लीमेंट करेगा। Government has told us that after the whole procedure is done, after the whole procedure law betting के लिए जाएगा, उसके बाद आपका कंसर्न मिनिस्टर के थ्रू होके जाएगा, after whole process is done, वो सब CBOs को बुलाएगा and with proper consultation only वो इसको पास करेगा। तो I think जो hue and cry सोशल मीडिया में है, it's uncalled for, but at the same time आप लोग ये चीज़ हम लोगों को अच्छा लगा है कि लिविंग दिस टू सेक्शन, आई एम नॉट सीइंग मच ओपोजिशन टू अदर आर्टिकल्स। तो अगर इसमें अगर गवर्नमेंट को लगता है कि सब CBOs नहीं मान रहा है, तो वो गवर्नमेंट के ऊपर में है ना। सेक्शन 42 and 43, एंड वी हैव केप्ट अ सेक्शन फॉर नॉन APST वुमेन getting married to a APST man also. We have said that as long as she is alive and if she is not married or if she is after she gets divorced, then only the marriage her property can be transferred. वो भी हम लोगों ने सेक्शन 44 में क्लियरली दिया हुआ है। और आप लोग खुद सोचिए, हम लोग जब एक नॉन APST वुमेन हु इज गेटिंग मैरिड टू APST मैन, वी आर रेडी टू गिव हर ऑल द राइट्स। Why we are not ready to give rights to a APST women getting married to non-APST man? And it will not be transferred at no cost. We are talking about transfer of land from the APST women to non-APST man. And you might we have already seen this one also. जैसे APSU ने बोला है, there is a committee under SJETA which is headed by the minister SJETA and the secretary SJETA, जहाँ पे status of a child of a ST mother and non-APST father has been discussed.
उसका अभी तक नहीं आया है. वी विल ऑल्सो सी कि उसका वी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द दिस वन कमिटी. वुमेन कमीशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट कमिटी. तो वहाँ पे क्या ये आता है आउटकम, वो कमिटी का क्या सजेशन आता है, उसको भी हम लोग देखेंगे. एंड इट्स क्वाइट आई थिंक मुझे लगता है आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी पर्सन इन अरुणाचल प्रदेश, वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो या वुमेन हो या गर्ल हो, आप पिताजी भी हो सकता है, आप माँ भी हो सकता है, आप बेटी भी हो सकता है, बेटा भी हो सकता है. आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि अभी हमारे ज़माने में जो भी हो गया होगा, हमारे परदादा के समय में जो भी हो गया होगा, हम लोग एटलीस्ट ये देखना है कि कल को हमारा बेटा बेटी को तकलीफ नहीं होना चाहिए बिकॉज ऑफ सम कस्टमरी प्रैक्टिसेस विच आर नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ वुमेन. तो उसको यू नो दैट ऑलरेडी अरुणाचल प्रदेश में जो भी हम लोग शादी करता है, इट्स डन अकॉर्डिंग टू स्पेशल मैरिज एक्ट. मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस विच आर देयर इन दिस मैरिज एंड इनहेरिटेंस बिल, वहाँ पे मोस्ट ऑफ द सेक्शंस हैव बीन टेकन फ्रॉम स्पेशल मैरिज एक्ट which is already existent in Arunachal Pradesh. Please note that. And other than that, we have taken some sections from the Mizo Act also, from the Hindu and from other Christian Marriage Act also, and Indian Succession Act as well. So it's not that this thing is going to hamper a person और हम लोग नन ट्राइबल को देने के लिए, अपना लैंड को सेल करने के लिए. इसलिए आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, अगर आप लोगों को कोई भी CBOs NGO मेंबर्स है, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ कम टू द कमीशन, प्लीज़ गो टू द अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी, प्लीज़ गो टू एनी ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी मेंबर्स. तो आपको जो रिप्लाई है आपको मिल जाएगा. आप लोगों का ज़माना में जो हो गया, हमारा माँ पिताजी का ज़माना में जो हो गया, अगर वो गलत है, वो प्रैक्टिस अगर गलत है, हम लोग फ्यूचर में उसको कैरी ऑन नहीं करना चाहिए. मेरा तो वही सोच है. एंड अगर आप लोग सही मायने में प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बात करते हैं तो दैट हैज़ टू बी लीगल, इट हैज़ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनल. हम लोग कुछ ऐसा लॉ नहीं बना सकते विच इज़ नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल. इट हैज़ टू बी अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट. उसके बाद भी गवर्नमेंट बुलाएंगे आप लोगों को. तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि आप लोग पर्सनली किसी के ऊपर पर्सनल अटैक मत कीजिए. जैसे कि आपने तोपी बासार और उसके बच्चों का फोटो मीडिया में डाला है. वुमेन कमीशन एंड सीनियर मेंबर्स ऑफ APWWS को इतना गंदा गंदा गाली दिया है. आप खुद को सोचिए, आप लोग ये जो हमारा माँ का एज का है, इतना सीनियर लेडी को आप लोग जस्ट बिकॉज यू डोंट हैव प्रॉपर नॉलेज कि क्या हो रहा है, यू आर रेडी टू गिव एनी गाली. तो आप लोग एक मेच्योर सोसाइटी का हिसाब से फंक्शन करने से ठीक है. ऑल ऑफ अस आर एक्सपेक्टेड टू बिहेव इन अ प्रॉपर वे. एक आदमी ने बोल दिया, एक कोई NGO ने बोल दिया, आप लोग सब भड़क गया, ऐसा नहीं होने से ठीक है. ऑल द स्टूडेंट यूनियन लीडर्स ऑल्सो, अंशु, आपसू, आन्या, आई वुड रिक्वेस्ट देम तो इसको जो प्रोसेस है उसमें जाने दीजिए. आप लोगों का जो भी है, वॉट एवर ग्रीवेंसेस आप लोगों का है, आप लोग उसको थ्रू प्रॉपर चैनल कीजिए. डू इट इन अ लॉफुल मैनर. डिमांड योर वॉट एवर डिमांड यू हैव, प्लीज प्लेस इट इन अ प्रॉपर वे. एंड लेट नॉट दिस इश्यू बी दिस वन टेकन अप बाय द एंटी सोशल एलिमेंट्स कि हाँ ये इश्यू को लेके गवर्नमेंट गिराओ, ये करो, ये औरत को मारो, वो करो. I think that is not expected from any of us. So that is my final appeal to all the members of Arunachal Pradesh society to please behave maturely. और आप लोग अगर अपना ये लोग को गाली दे रहा है, वुमेन कमीशन को गाली दे रहा है, तो आप लोग अपना माँ बहन को गाली दे रहा है, आप लोग किसी और को गाली नहीं दे रहा है. आप लोग प्लीज़ काइंडली जब भी आप लोग अपना वर्ड यूज़ करते हैं थोड़ा सोच समझ के यूज़ कीजिए. एंड तोपी बासार फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी. शी जस्ट गेव अ प्रेस रिलीज ऑन इट. दैट वॉज ऑल्सो विदाउट आवर नॉलेज because that time the final bill was not final as of yet. Thank you so much, and at the same time sorry for being late. Thanks a lot.